السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ اللہ حضرت کا ماننے کو دیوانہ ہے، ماننے کا تو دیکھو اعلیٰ حضرت کیا ہے، کہاں سے ہوا یہ فرقہ وریت برلیت، یہ مطلب فرقہ کب سے شروع ہوئی؟ یہ جو اچھا تو ہم لوگ دیوبندی اور سننے میں ہوتا کیا، ہم کو یہ بتائیے۔ سنو جب سے دیوبند مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی تب سے لے کر مطلب سوچو آج سے 200 سال پہلے 150 سال پہلے سے یہ فیوچر ہے۔ یہ تم بیٹھو گے میرے ساتھ اچھی طرح جو ہے نا، اعلیٰ حضرت کس لیے وہ آپ نے سے فرقہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ سنو اللہ حضرت جو ہے، سنو میرے عظمت مصطفیٰ زیادہ جذباتی مت ہو، ٹھیک ہے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اس کا مطلب بتائیے۔ ٹھیک ہے، لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو، وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ کروڑوں سلام ہو جو تاجو سریہ کہاں کا ہے؟ تاجو سریہ وہ ابھی تو دوسری بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک ہم کو جواب نہیں دیے، دو ٹھو میں نے پوچھا، آپ بولے آل انڈیا گھرے ہوئے۔ یہ جو مولوی سے تم جب بھی نور حسن آدمی اتنا چھوٹا موٹا نہیں ہے، تو آپ سے بہت کچھ تو پھر آگے ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے ہے، بہت بڑھیا ہے، آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو میرا نمبر ان کو دے دیا، تو ڈائریکٹ میرا نمبر خود دیا، میں نے نمبر پہلے دیا کہ یہ میرا وہ نمبر ان کا یوٹیوب میں دیکھ لیجیے گا، نکال کر ڈائریکٹ بولتا ہے کہ کوئی ایسا ماں جنم ہی نہیں دی ہے دیوبندی میں کہ بولے ہم سے وہ کوئی بات کر۔ ٹھیک ہے، مولانا طاہر غیابی کا بیان سنو، آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا طاہر غیابی کا نمبر مانگ رہا ہے تو آپ نہیں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کو دیجیے، ہم دے دے رہے ہیں۔ یوٹیوب میں چارج کرو، ان کی جس طرح تم ان کے بیان سنتے یوٹیوب میں، تھوڑا ان کے بھی سن لیا کرو، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں بیرلی حضرت بیٹھے ہیں ایک سیکنڈ اس مجلس اور میں، جو نور حسن اجبی جو ہے مولانا طاہر غیابی کے ساتھ بیرلی حضرت بیٹھے ہیں۔ اب سنو، پتہ چل جائے گا ایک دم چل۔ اور ہم بتاتے ہیں کہ جو آپ لوگ کا ہسٹری، وہ پورا جو نور حسن اجبی ہے نا، 15 سال رہا ہے، 15 سال پورا کھلا، مطلب جب جان گیا بولا کہ ہم کو لائن راستہ اچھا نہیں، ہم نکل گئے۔ نکلنے کے بعد میں وہ دیکھیے یوٹیوب میں اتنا نا ہنگامہ کر دیا محبت ہے نا، جس کے ساتھ محبت ہے نہیں، وہ راستہ ڈھونڈا نا، سچ ہو جھوٹ ہو کیسا بھی ہو برا بھی ہو، ہاں تو اس کو وہ پھر اچھا بھی ان کو لگا چھوڑتے نہیں، تو چھوڑ کیسے دیا، آپ ہمیں بتائیے۔ ٹھیک ہے۔ بولتا ہے ڈائریکٹ کہ ہم 15 سال رہ چکا ہوں، ٹوٹل جان گیا ہوں آلریڈی، ہاں ٹوٹل کوئی باقی سب ختم ہو گیا، جان سب جان گیا۔ سمجھ لیجئے کہ وہ جان ہی گیا ہے۔ کتنے عمر کی لڑکی ہے؟ زیادہ کا نہیں، تو پھر 30 ہے، اس سے کتنے 30۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت؟ ویڈیو دیکھے ہے کہ نہیں؟ یار دعا ہے آپ کا، الحمدللہ۔ ہاں دیکھ لیا حضرت۔ اسی حضرت کون سے بندہ آپ تھا؟ بات کیے تھے، اور کیا بولا جاتا ہے 33 منٹ نہ 32 منٹ۔ اچھا تو اچھا، ہم یہ سے وہ ہی مفتی بحث صاحب ہے؟ نہیں کر، ہاں مفتی صاحب ہم سے نہیں بحث کر پائی تو بھاگ گیا ہے ہم ہی سے، بولے ہیں کہ یہ تو صرف سنی کا بچہ ہے۔ مگر ہم سے بحث میں مطلب یہ بھاگ گیا، ہم ہاں، اپنے روم پہ بلائے تھے، آیا تھا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے حضرت اس کا؟ زین العابدین۔ اچھا زین العابدین، یہ ہے وہ زین العابدین؟ یس، ویڈیو تو دیکھ ہی لیے ہیں آپ۔ ہاں ویڈیو میں نے دیکھ لیا ہے، اس کا فوٹو بھی نکال لیا ہے۔ ہاں ادھر میں ہوں، ادھر وہ ہے، لکھے بھی ہے دیوبندی اینڈ سنی۔ ہاں شاید اس کا میں نے اچھا یہ گفتگو کب کی، آج کی کب کی؟ آج 6 بجے شام کو، 6:10 وہاں گھڑی بھی ہے لگا ہوا ہے۔ دیوبندی زین العابدین، لاسٹ میں جو ہے 985 اس کا نمبر ہے آپ کا؟ ہاں اس کا نمبر شاید ایک منٹ، ایک سیکنڈ آپ کو میرا جانتا ہے نا یہ؟ ہاں دیکھو، چیک کرو چیک کرو چیک کرو، کیا کیا آپ کو جانتا ہے نا یہ؟ ایک دم جانتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ٹائم پہ دیتا ہوں۔ اس کا نمبر 15 ہے لاسٹ میں، 15 ہے؟ 90015۔
एक मिनट, तो फिर यार तो इसका नंबर तो गुम गया। अच्छा तो हाँ फिर तो ऐसा करो, नंबर बताओ आप मुझे। 600 600 14 14। 900 ठीक है, आ गया आ गया। 90015। हाँ आ गया। আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য এটা কলত ব্যস্ত হৈ আছে। আপুনি অপেক্ষা কৰক অথবা কিছু সময় পিছত কল কৰক। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैनुल आबिदीन साहब बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, जैनुल आबिदीन साहब बोल रहे हैं? जी 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 अच्छा अच्छा जी, क्या हाल है बोलिए। आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप बुजुर्ग की, अल्लाह के करम है। मैं शायद आपसे छोटा हूँगा, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। चलिए, हर एक बंदा मैं बुजुर्ग होता है अगर करीब 30 दीन साल के इस्लाम को आसपास साथ मेरी में उम्र है। लेकर चलते हैं। और सुनाइए, खैरियत वगैरह सुनाइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल करम है, एहसान है। अच्छा 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 अच्छा, और क्या चल रहा है फिलहाल? बस चल रहा है देवबंदियत का रद। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म, तो फिर सुनाइए। जी, किसी मौजू पर बात करना चाहते थे, अगर हाँ आपकी हाँ इजाजत हो। हाँ, अच्छा बोलिए, कौन सी मौजू पर बात करनी है आपको? जिस पर आप चाहें, जिस मौजू पर आपको आसानी हो। अच्छा अच्छा, नहीं हमें तो कोई नहीं, आप कहिए बस। अच्छा मैं करूं, चलिए। हाँ मैं आपके हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से आपसे बात करना चाहता हूँ। हाजिर नाजिर, जी, ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी अभी तो आजान हो रही है, ठीक है। अजान हो रही है अभी ईशा की? हाँ आजान हो रही, आजान जमात है 8:15 पर, ठीक है। तो तो इतनी जल्दी अभी अजान कहाँ से हो जाएगी भाईजान? अभी तो हाँ हाँ, अभी आजान हो रही है। हम यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं। अभी 15 अभी मिनट है। अरमान जो है मस्जिद के करीब कमरा है, ठीक है। हाँ अच्छा अब उनसे सुन सकते हैं, आजान हो रही, आजान हो गई, अभी जो है जमात का टाइम है। तो फिर बात जो है हम मोबाइल पे करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज के साथ, नहीं हदीस नहीं, के साथ ऐसी करें? फोन कॉल ही बात होगी। कौली बात तो बस कोई एतबार नहीं। क्यों? हाँ, आप जो है मैसेज के जरिए से बात करो तो अच्छा रहेगा ज्यादा। फिर मैं सबूत क्या दिखाऊंगा अवाम अहले सुन्नत को? हाँ सबूत, अरे भाई आप सबूत या के मैं, लिए अदिल्ला, आप या मैं, हाँ सबूत आप के या लिए मैं। अदिल्ला शरइया है ना मौजूद। देखिए अभी आप दोनों की बात हुई हाँ है ना, तो बोलिए। एक दिन और हमारी बात कराई थी इन्होंने, अच्छा जी तो जी जी फिर भी आप जो है छोड़ के चले गए थे। जी, हाँ सुनाइए। तो मैंने सोचा कि लाओ आज शायद टाइम हो। हाँ वही ठीक है, हाजिर नाजिर पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा मेरा नजरिया तो ये है आपका कि आपका अल्लाह, क्या नजरिया है, आपका मुद्दा क्या है, आप जो है मैसेज करे, हम इसके जवाब देते रहेंगे। फिर उसके मेरा बाद अकीदा अगर कोई यहाँ तक है। दिक्कत, सुनिए, कोई दिक्कत है तो फिर हम फोन करके हम बात करेंगे फिर। मैं अपनी बात बता दूं और आप हाँ उसमें हाँ ना में बताइएगा कि आपका हाँ नजरिया ये बोलिए, है या नहीं। हाँ बोलिए मेरा बोलिए। अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस उम्मती के पास आना जाना चाहें अल्लाह की अता से, जिसकी हाँ किस्मत को जगमगाना चाहें, जिसकी जी किस्मत को जगाना चाहें, है ना, जी जी उसकी जी किस्मत रोशन कर सकते हैं, उसकी किस्मत को जगा सकते हैं। आप जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से किसी भी उम्मती के पास अल्लाह की अता से आ जा सकते हैं। यहाँ तक मेरा नजरिया है, यहाँ तक मेरा अकीदा है। क्या आपका ये अच्छा। नजरिया, ये अकीदा है? नहीं नहीं, हमारा तो नजरिया कुछ अलग है। क्या है? नबी तो कब्र पे जिंदा है, अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ तो उम्मती जो दुरूद वगैरह पढ़ते हैं, हाँ फरिश्ते के जरिए से उन पर भेजा जाता है, अच्छा पहुंचाया जाता है। अच्छा ये भी हमारा अकीदा है, नजरिया है। अच्छा अच्छा लेकिन नबी हर एक उम्मती के पास पहुंच सकते हैं, ये हमारा अकीदा नहीं है। हर एक के मैंने कहाँ कहा, शायद आपने सुना नहीं ठीक से। मैंने हाँ कहा हुजूर सुनाइए। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस उम्मती किस्मत को जगाना चाहें, जिसके पास हाँ हाँ आना जाना चाहें, आ हाँ जा हाँ सकते हैं अल्लाह की अता से। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अगर भेज दे, ठीक है, वो तो तो आपने नबी तो की कोई मना कर दिया कमाल ना, नहीं है।
आपको तो करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हाँ हमारा वो ये नबी है। का कमाल नहीं। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं हम्म, जो अल्लाह का काम वो बंदे के जरिए से करवाते हैं, अच्छा लेकिन उसमें बंदे का कोई कमाल नहीं होता। अच्छा अच्छा ठीक है ना। अच्छा, अगर तो खुदा हुजूर के चाहे अलावा तो कुछ सहाबा भी कर इकराम भी सकते आ जा हैं। सकते हैं या नहीं? अगर खुदा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हुजूर के उम्मती अगर आना जाना चाहे कहीं तो क्या आ जा सकते हैं? हुजूर की उम्मती, हाँ, जैसे सहाबा हाँ। इकराम है अच्छा, जी, हाँ या कैसे आज का बोलिए? कोई आलिम है, कोई मौलवी है, हाँ हाँ, क्या वो अपनी कब्र मुबारक से कहीं आना जाना चाहें, क्या आ जा सकते हैं? कहा हुजूर के पास? कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह? नहीं नहीं, हम तो ये नहीं मानते हैं। अच्छा, तो जो ये मानता है या जो इस तरह का अकीदा किसी ने गढ़ा है, रखा है, उसके हाँ। ताल्लुक से आपका क्या नजरिया होगा, क्या हुक्म होगा उस पर, शरीयत का क्या हुक्म आएगा? हाँ, अगर किसी ने इस तरह का लिखा है तो फिर उसमें बात होगी इंशाल्लाह। हाँ, मतलब बात होगी तो इसमें शरीयत का क्या हुक्म आएगा? वो काफिर होगा, मुशरिक होगा, बेदीन होगा, दिन से खारिज होगा, हाँ, यही वो सब तो होगा ना? बिल्कुल जाहिर से, हाँ वो तो बिल्कुल जाहिर से हादिस है कि जो बात नबी ने कही नहीं, अच्छा अगर वो किसी उम्मीद से कह दिया तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, तो हादिस है। ठीक है अच्छा, ना। तो अगर अच्छा, अपनी तरफ से कोई बात गढ़ी है, हम्म, ठीक है, तो हुक्म है वो तो जायज़ है। हाँ, तो हुजूर के लिए तो इजाजत है, हुजूर तो आ जा सकते हैं अल्लाह की अता से, मगर सहाबा नहीं आ जा सकते ना। आज का कोई आलिम, कोई मौलवी है ना, कोई पीर वली, कोई जी नहीं, जी यही है ना? जी। अच्छा अच्छा, तो मौलवी कासिम ननोतवी साहब मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहुंच गए थे लड़ाई जी, मिटाने के लिए। मौलवी कासिम ननोतवी साहब मदरसा दारुल उलूम देवबंद पहुंच गए थे जब हाँ वहाँ जी, मदरसे के लोगों में झगड़ा हुआ ना, मौलवियों में, जी तो झगड़ा मिटाने गए थे मौलवी कासिम ननोतवी साहब। जी। इसमें कई सारी बातें पेश आती हैं। एक तो ये कि मौलवी कासिम ननोतवी साहब को खबर किसी ने दी कब्र में जाके कि दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में झगड़ा हो गया है। जी हाँ, और फिर वहाँ जाने के लिए उन्हें कैसे इजाजत मिली, क्यों कर गए, क्या खुदा की तरफ से ऐलान हुआ था कि कासिम नानोतवी तुम जा सकते हो, तुम्हारे लिए इजाजत है? कई सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, मेरे कई सारे एतराज हैं। और फिर दूसरी बात, जो आपने हुक्म लगाया कि हाँ वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा, बेदीन होगा, काफिर होगा, मुशरिक होगा, तो ये सब हुक्म सिर्फ बरेलवियों के लिए है या देवबंदियों के इन मौलवियों के लिए भी है? देखिए, ये जो भी करे, जो भी करे, बरेली, देवबंदी या फिर अहले माशाअल्लाह, हदीस, सुनिए माशाअल्लाह जी। चलिए, जिसके तो तरफ से भी हो। इससे हाँ, इससे मौलवी अशरफ खान भी काफिर हो चुके हैं, मुशरिक हो अच्छा, चुके हैं, दायरे हाँ इस्लाम ठीक से है, खारिज हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब हिकायत औलिया में ये बात लिखी हाँ है ना? अच्छा, हाँ जी, क्या लिखा है बात में, सुनाइए। अच्छा, मौलवी कासिम नानोतवी के ताल्लुक से लिखा गया कि अच्छा, एक मर्तबा दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में झगड़ा हो गया था। हाँ देखो अच्छा, भेज दीजिए कौन सी किताब में लिखा है। हिकायत भेज दीजिए। औलिया, जी, वो जो है फोटो करके हमें भेज दीजिए। बिल्कुल आपकी भेज बात से हम देंगे। नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ, अगर ये हुआ तो वाकई मुशरिक हैं या नहीं दोनों, थानवीर जी हाँ और कासिम नानोतवी जी? हाँ, ठीक है, आपके बात अभी जो अभी कह रहे हैं हम अभी फिलहाल मान लेते हैं। आप भेज दीजिए प्रूफ के। मैं आपको सबूत हार के नहीं लिए आप मनवा भेज रहा हूँ। दीजिए। अच्छा, मेरे व्हाट्सएप पे भी ये सबूत के पड़ा लिए हुआ है। आप भेज दीजिए। और फिर शरीयत का जो हुक्म है, जी, सुनिए, हाँ शरीयत का जो हुक्म है वो तो जी, लग जाएगा, कोई भी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मजा आ गया। हाँ, ये आप भेज दोनों दीजिए व्हाट्सएप पे। चीजें, हाँ, मैं इनके भाईजान के पास भेज रहा हूँ और ये हाँ, आपको भेज देंगे, या दोनों के पास भेज रहा हूँ? टेंशन नहीं नहीं, आप डायरेक्ट मेरे को भेज दीजिए। अच्छा, आपको भेज दूँ, ठीक कोई है, बात आपको है, हाँ भेज भेज दीजिए, दूँ। एक मिनट, भेज दीजिए। और जो है सुनिए, हाँ अभी जमात के टाइम हो रहे हैं, ठीक है। जी 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 जी, तो हाजिर और नाजिर के बारे में बात करना है आपको। तो आपका बात हो गई, सवाल अब क्या दोबारा है, से भेज करेंगे। दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज देखिए, दीजिए। आपके पास मैंने भेज दिया, ठीक है, हाँ, हाँ, आपके पास मैंने भेज दिया है। अच्छा, और हाँ, हाजिर नाजिर के बारे में बात करना, ये हमारी मौजू है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात करेंगे अभी और? नहीं, अभी टाइम हो रहा है जमात का, अभी जो है अच्छा आप ठीक है, ठीक है, हाजिर ठीक है, नाजिर के ठीक है, बारे में जी जी, आपको जो कहना है इससे आसान तो कोई सुनिए। हाजिर नाजिर की बात ही नहीं आएगी।
सुनिए। इससे आसान तरीके से कोई और हो सकती है बात? नहीं, ठीक है, नहीं, फिर भी सुनिए, मैं वो तो करूंगा। है। हाँ, फिर भी करूंगा हमें जो है मोबाइल पे कौली बात पर हम कोई जो है इसमें मसला हल नहीं होगा। आप भेज दीजिए तो देखिए, किताब के अब एतबार से, ये आपकी दलील के जिम्मेदारी है। सबूत के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में, ठीक है ना? हाँ, आप भेज दीजिए, बस हम मान और लेंगे। भी, हाँ, आगे और भी ज्यादा मजा आएगा, है हाँ, ना? मजा तो बहुत आगे जरूर और आएगा। भी ज्यादा इंशाअल्लाह लोगों की इस्लाह हाँ। हो जाएगी। जी 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 जी, अगर आपके जरिए से हम इस्लाह हो सकते हैं तो जरूर इस्लाह होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। आप भेज जलील दीजिए। जी, मैं ये आपके घर से हवाला पेश कर देंगे। हाँ, हाँ। अरे भाई भेज दो, हम कह रहे हैं कि भेज दो, आप भी जी भेज जी दो। जी जी जी, ठीक है, फोन करते ही हाँ। आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ हाँ। और अरमान और भाई, आपका हाँ जी। नजरिया क्या है? सुनिए, आपको भी दे रहा हूँ। हाँ, हाँ। आपका नजरिया ये है कि नबी हर जगह हाजिर है, ठीक है ना? देखिए देखिए, मैंने अपनी सुनिए। बात को कहा, शायद आपने सुनिए। मेरी बात को ठीक से सुना नहीं। हाँ, सुना मैंने। सुनिए, मैं मेरी दोबारा बात से सुनिए। सुनाता हूँ आपको। आपने कहा कि नबी हर जगह हाजिर व नाजिर है। कब कहा? चलिए ऑडियो में मुझे ठीक है। दिखा दीजिए, सुनवा दीजिए कि अगर मैंने ये कहा हो। तो आपका मौजू ये है ना, आपने कहा ना पहले। फिर वही बात, मैंने आपका जो तो बात सबसे कही है बड़ा उसी को अकीदा ये है रिपीट। कि अल्लाह के नबी, अपने उम्मत के पास पहुंच सकते हैं कि नहीं? अल्लाह आपका कहना है कि नबी आलिमुल गैब है, ठीक है ना? मैंने कब कहा कि हुजूर आलिमुल गैब है? ये तो ठीक है, ये तो तो आप ये लोगों तो का हाजिर सबसे और बड़ा नाजिर अकीदा के, है। ये तो हाजिर और सुनिए, नाजिर से अलग बात है। बरेलियत का सबसे देखिए, बड़ा अकीदा है कि मुफ्ती अल्लाह साहब, के नबी आलिमुल गैब है, हाजिर चलिए नाजिर है। साबित कर दीजिए, चलिए साबित कर ठीक है। दीजिए कि हुजूर को हम आलिमुल गैब मानते हैं। हाँ साबित कर दीजिए। हाँ, हम इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ऑडियो पे साबित कीजिए। हाँ, मुझे नहीं, अवामा अहले हम सुन्नत को सुनाना है ना। सुनिए, मैं तो जानता हूँ हमारा ये नजरिया ही नहीं किताब है से साबित करूंगा ना, मैं कुरान आलिमुल के गैब जरिए, का। तो हदीस के अभी, जरिए हम साबित करेंगे। अच्छा अच्छा, तो 2 मिनट में इसको साबित कर दीजिए। चलिए मैं 2 मिनट आपको देता हूँ। नहीं नहीं, हम जल्दी साबित नहीं करेंगे, जल्दी काम करना क्यों? के ताजिल का शयाती बहुत। भाई मेरी तरफ से भी फाइनल, आपकी तरफ से भी फाइनल। नहीं, जब हमारा आपके ये नजरिया है ही नहीं कि हुजूर आलिमुल गैब है, नहीं या हम नहीं, ये हुजूर, तो आपका सबसे बड़ा अकीदा है। अच्छा आपकी चलिए, किताबों में जो लिखा हुजूर हुआ को है, आलिमुल आप पढ़ गैब मानता लीजिएगा। है, जो हुजूर आप को पढ़ आलिमुल गैब लीजिएगा, मानता है, उस पर देखिएगा शरीयत का आप। हुक्म क्या लगेगा? चलिए इस पर भी देखिए, बताएं। हम भी मानते हैं कि नबी आलिमुल गैब है, लेकिन कैसा किस आप भी तरह मानते वो हैं आलिमुल हुजूर को गैब है? आलिमुल गैब? सुनिए सुनिए, वो जुज़ई एतबार से आलिमुल एक मिनट गैब, एक हर मिनट कोई एक मिनट जुज़ई एतबार से। आलिमुल गैब की तारीफ आप कीजिए। लोगों का कहना है कि कुल्ली एतबार से नबी आलिमुल गैब है, नाउज़ुबिल्लाह। हम यार आलिमुल गैब नहीं कहते, आपके नहीं दिमाग में थोड़ी सी गलत फहमी है। नहीं नहीं, हम गलती आलिम नहीं है। गैब कहते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता किया है और हमारे नबी गैब का इल्म जानते हैं। हम हुजूर के लिए आलिमुल गैब का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं करते जनाब, पहली तो ये बात है। अच्छा, और आपने इस बात को इकरार कर लिया कि हम भी आलिमुल गैब मानते हैं। पता चला कि हाँ। देवबंदी आलिमुल गैब मानते हैं, मगर सुनिए, हम हम हुजूर किस के तरह लिए मानते हैं ये आलिमुल तो गैब सुन का लफ्ज लीजिए। इस्तेमाल नहीं कर सुनिए सकते। सुनिए, देखिए, आप जिस तरह से भी मानते हो, अल्लाह की हम तरफ जाति, से कोई चीज, सुनिए, अल्लाह देखिए की तरफ से कोई चीज पहले से सुने नबी तो, को खबर दिया जाता है। मेरी बात सुने। जुज़ई एतबार है, जुज़ई, हाँ, हम कुल्ली भी एतबार जुज़ी से मानते नहीं। हैं, हम भी ठीक है ना? जुज़ी मानते हैं, हम्म ना कि हम्म, हम ये कहते हैं कि कुल इल्म गैब हासिल है, ना हम ये कहते हैं कि जाती इल्म गैब हासिल है। हाँ। तो जब हमारा इस बात में तो कोई फिर झगड़ा झगड़ा किसमें ही है? नहीं, तो फिर झगड़ा किसमें है? झगड़ा इसमें है कि हाँ तुम लोग हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते हो, और हाँ इसलिए लगाते हो कि तुम कुरान हाँ पाक की वो आयतें पेश करते हो जिसमें कुल और जाति की नफी है। वो आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हो कि देखो भाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता, अगर मैं जी। गैब जानता तो बहुत सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता। बेशक। ऐसी ऐसी तुम जो है आयतें पढ़ के सुनाते हो जिसमें जाति की और कुल्ली की नफी है, अताई की यहाँ कोई नफी ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी आयतें पढ़ पढ़ के और उसका तर्जुमा गलत करके आप अवाम अहले सुन्नत को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हो जनाब। समझे जनाब? आयत पढ़ के गलत तर्जुमा करके उम्मत को गुमराह करते हैं ना, मतलब ये गलत आपका- जहन देते हो ना ये आपको जो कि आपने देखो भाई बात अल्लाह के कही नबी ना, तो ये फरमा रहा है, देखो सुनिए, भाई अल्लाह के नबी तो सुनिए, ये फरमा रहा है, मगर आप वो आयतें आपने नहीं जो पढ़ते। ये बात सुनिए तो, कही है, सुने तो, मेरी पूरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मेरी बात पूरी सुनेंगे? इस्तिग़फ़ार कीजिए। मेरी पूरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? फिर वही बात, गलत तासुब, सुने तो, गलत तासुब आप लोगों को देते हैं। जिसके दिल में खौफ खुदावंदी है, कोई भी आलिम दीन जिसके दिल में खौफ खुदावंदी है, आप हमारी अगर वो बात पूरी हक नहीं है, सुन रहे हैं सुनिए, और हम आपकी बात अगर को वो हक है तो कभी भी जो है अपनी तरफ से मनमानी बातें कभी भी नहीं करेंगे। जो तो ये करते हैं मनमानी वो तो आप करते हैं। दुनियादारी है।
मनमानी वो तो आप दुनियादारी करते हैं। है, दुनिया कमाने के लिए करते हो सब। देखिए एक ठीक है मिनट, मैं यहाँ ये बता दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यहाँ पर जो है इनकार है, जो नफी है हुजूर के इल्म की, ठीक है, कुल्ली और जाती की नफी है, ना के अताई की। तीसरी बात यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी, ठीक है। अब जो आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब की तारीफ कर रही हैं, जिसमें खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि ए लोगो, ए आम लोगो, तुम्हें गैब का इल्म अता करे। ये अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हें गैब का इल्म अता करे। हाँ, उसके लिए अल्लाह ताला अपने रसूलों में से चुन लेता है, जिसे चाहता है अता करता है ना। तो अल्लाह ताला ने जिसे जिस कदर चाहा अता किया। तो ये आयत क्या कह रही है, यानी अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता करने के लिए आम लोगों को नहीं चुना, बल्कि अपने नबियों को चुना। तो नबियों को इस आयत से क्या साबित हुआ कि हाँ, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को गैब का इल्म अता किया है। हाँ, ये साबित आया ना। तो अताई इल्म गैब हमारे नबी को हासिल है। दिगर अंबिया इकराम को भी, जिनको भी अल्लाह ताला ने गैब का इल्म अता किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो या दूसरे अंबिया हो, ठीक है। तो यहाँ ये आयत बता रही है कि अल्लाह ताला ने गैब का इल्म हर किसी को नहीं दिया, ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं दिया, तुम्हारे जैसे को नहीं दिया, मेरे जैसे को नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को चुना। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने नबियों को गैब का इल्म अता किया। और जो नबियों के गैब का इनकार करते हैं कि अल्लाह के नबी गैब का इल्म नहीं जानते, और आप वहाबी देवबंदी उन आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं जिसमें कुल्ली और जाती की नफी है, तो उन पर तो हमारा भी कोई वो नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि इसमें कुल्ली और जाती की नफी है, ना कि अताई की नफी। भाई समझाना जो है आपका, जो आप लोगों को जहन देते हो, वो दूसरा नजरिया होता है। आप इनकार के नजरिए से कहते हो कि देखो भाई अल्लाह के नबी तो गैब जानते ही नहीं, अगर अल्लाह के नबी गैब जानते तो फिर ये क्यों फरमाते। तो वहां जो है कुल्ली और जाती की नफी है, वहां अताई की तो कोई नफी नहीं। मैं कहता हूं लोगों से कि पूरे कुरान पाक में या कहीं हदीस में ये आप बता दें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि अल्लाह ताला ने मुझे गैब का इल्म अता नहीं किया, या आप ये दिखा दें कि अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि मैंने अपने नबियों को गैब का इल्म अता नहीं किया। इससे साफ सुथरी बात कोई नहीं होगी। देखिए, आपने जो बात कही ठीक है, हम भी तो यही कहते हैं ना कि जिसको चाहे और जुज़ी एतबार से जिसको पसंद है अल्लाह उसको गायब के इल्म दे देते हैं, ठीक है ना। हम तो ना नहीं करते बिल्कुल। तो यानी आपने मान लिया। हाँ, वो तो देखिए, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो जुज़ी हम भी मानते हैं, जुज़ी आप भी मानते हैं, तो यहाँ तो दोनों बराबर हो गए। बराबर है। आप जो मानते हैं जुज़ी, देखिए जुज़ी जो गायब है, इल्म गायब, ये खुदा नबी को जिसको चाहे दे सकते हैं या फिर देते हैं, वो हम मानते हैं। तो दिया है ना, अता किया है ना नबियों को गैब का इल्म। क्या है तो ये कुरान पाक की आयत गवाही दे रही है। तो अब इस कुरान पाक की आयत से इनकार करना, इससे मुंह मोड़ना और ये कहना, यही नजरिया रखना कि अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता, आप नहीं मोड़ रहे हैं तो आपकी जमात के लोग मोड़ते हैं। नहीं तो फिर सही में नहीं, मेरे यूट्यूब पर बहुत सारी ऑडियो पड़ी हुई हैं, मेरे यूट्यूब पर बहुत सारी ऑडियो पड़ी हुई हैं। आप जो है जो आपको कहना है, ठीक है जी, आप सवाल के एतबार से, हाँ इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं, ठीक है। वरना जो है इस अंदाज में बात नहीं करते लोग, बड़ा बड़बड़ाने लगते हैं। चलिए आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। हम इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके, ठीक है जी, हम कुरान और हदीस के जरिए से आपको समझाते रहेंगे या आप मुझे समझाते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक बात और कही थी आपने कि आला हजरत ने जो है वो नया फिरका बनाया। क्या माज़अल्लाह आला हजरत ने नया फिरका बनाया था? हाँ, ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। कहाँ से आया, कब से हुआ, देवबंदियत कब से हुआ, बिरलियत कब से हुआ, इसकी कोई वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ। मगर हमारा नजरिया और आपका नजरिया, हमारा अकीदा और आपका अकीदा, ठीक है, ये किन से मेल खाता है इसको देखना है। हुजूर ने फरमाया माना अलैहि वसहबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे वो हक पर हैं, वो जन्नती हैं।
तो तुम्हारा अकीदा सहाबा इकराम से मिलता है या हमारा अकीदा सहाबा इकराम से मिलता है? और एक जमात हक पर रहेगी कयामत तक। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम हैं, सुन्नी हनफी बरेली। आपका क्या कहना है? आप जो है उस हदीस के मिस्ताक है। देवबंदियों के 4 अकाबिर काफिर हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अच्छा, हाँ, और मैं इसको ठीक है। साबित कर दूंगा। हाँ, आप ठीक है, आप जो है 4 अकाबिर काफिर है, इस्लाम से खारिज है, आप जो जी, है बिल्कुल। हवाले के जरिए से आप मेरे को भेज दीजिएगा। नहीं, बात हम करके जो है- बात करके फाइनल करेंगे। हवाला तो नहीं, भेज ही सुनिए। दूंगा, नहीं, बात क्योंकि करके आप फाइनल दूर करेंगे। हैं। सुनिए देखिए, सुनिए, आप एक बहुत मिनट। दूर है। देखिए अगर ऐसे करीब में होता तो ये बात होती, ठीक है। आप बहुत दूर बड़ा है, मजा हम भी आता, दूर है। फिर तो सुनिए, बड़ा ही मजा आता। आप बहुत दूर है, हम भी दूर है, ठीक है ना। ये आप जो है एक काम कीजिए, हाँ, आप ये किताब के जरिए से साबित कीजिएगा। इंशाअल्लाह, कुरान और इंशाअल्लाह, हदीस के जरिए से साबित करना बिल्कुल। होगा। जी जी जी। और अरे आला भैया हजरत ने सुनिए क्या- तो, सुनिए तो, आला एक मिनट, हजरत- एक मिनट। आला आला हजरत अपनी की बात किताब या में- थानवी जी की बात कुरान में आई है क्या, या हदीस में आई है क्या? नहीं नहीं, तो कुरान और हदीस से नहीं। साबित करेंगे हम। तो फिर एक आदमी को कुरान और आप हदीस काफिर के कह खिलाफ रहे- जिसकी बात होगी वो बातिल होगा। सुनिए सुनिए, एक आदमी को आप पहले जो है- बात को समझ लें, आप आलिम साहब हैं। सुनिए, आप इसी देखिए, एक सुने आदमी तो। को काफिर कह दोगे तो फिर उसके बारे में मसला क्या होगा? अच्छा, एक मिनट, हदीस में आया आपने है कि एक मिनट, अगर सुने तो। आपने किसी को इसे काफिर कह दिया, बल्कि वो काफिर नहीं हुआ, अब काफिर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस मुझे मालूम है। ठीक है ना। हाँ, मालूम ये है। बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म क्या वो थानवी जी का इल्म क्या आपकी तरह है? देखिए, आप बात जो है घुमाइए मत। अरे मैं बात को नहीं घुमा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। आप ये मेरे जमात अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस मेरी नजर में, भाई वो हदीस हम जानते हैं, देवबंद के जो है 4 अकाबिर काफिर हैं, ठीक है, बिल्कुल काफिर हैं, इस्लाम और मैं से साबित काफिर करूंगा। है। आप अच्छा, बात किस मौजू पर करेंगे आप? हाजिर और नाजिर पर बात करेंगे, इल्म गैब पर बात करेंगे, या 4 देवबंदियों के 4 अकाबिर काफिर हैं इस पर बात करेंगे? एक मौजू चुन लें। आपका मर्जी भाई, आप अच्छा, मेरा मर्जी। चलिए, उस वक्त जो भी होगा, ठीक है, जिस पर आप बात करना चाहें कर सकते हैं। मैं तो अपनी तरफ से मौजू ही नहीं चुनता। आज आपने कहा कि आप चाहें आप चुन लें, तो मैंने अपनी बात ऐसे खुल के बताई, ऐसी खुल के बताई, ऐसी खुल के बताई कि कोई देवबंदी अपनी बात को ऐसे खुल के बोलता ही नहीं। मैंने तो कह दिया कि मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस उम्मती के पास आना जाना चाहे आ जा सकते हैं। तो आपने कहा कि हमारा ये नजरिया नहीं, ये अकीदा नहीं। तो मैंने कहा अगर किसी का ये नजरिया, ये अकीदा हो तो उस पर हुक्म क्या लगेगा, है ना? तो आपने उसको बता दिया कि वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा, काफिर होगा, मुशरिक होगा। तो फिर मैंने आपसे ये कहा कि वो सिर्फ सुन्नी हनफी बरेलवी के लिए है या जो भी हो? तो आपने कहा जो भी हो, यही कहा था ना आपने। हेलो हेलो, शायद ये चले गए भाई। भाईजान क्या नाम है आपका? अरमान भाई। अच्छा ठीक है भाई, मुसलमानों फैसला आपको करना है। इन्होंने कहा था कि हमारा नजरिया नहीं है, हमारा अकीदा नहीं है। बहरहाल इन्होंने अपने अकाबिरीन को अपने मुंह से, अपनी जबान से जो है दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया है। इन्होंने अपने अकाबिरीन को काफिर और मुशरिक साबित कर दिया है, और फैसला आपको करना है। बस मैं यही करता हूं, मैं खुद नहीं कहता, बल्कि उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के लफ्जों से, उन्हीं की जुबान से इन्हीं के अकाबिरीन को मैं काफिर मुशरिक साबित करवाता हूं। यही मेरा काम है, क्योंकि ये मैंने इनसे कहा था कि तुम जिस कमाल को अल्लाह के नबी के लिए इनकार करते हो, अल्लाह के वली के लिए इनकार करते हो, वही कमाल जो है तुम अपने घर के बुजुर्गों के लिए तस्लीम करते हो, मानते हो, और वही हुआ, वही हुआ। बहरहाल अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। चलता हूं, फिर इंशाल्लाह इनसे बाद में बात होगी। अब देखते हैं कि ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।